All right, guys. I have given one question as a homework, but still some people has doubt. They say, sir, please solve the entire illustration 13. So let's start with illustration 13. सौर अब तो मैंने बेटर वाली भी भेज दी। हाँ, आपने मेरे को भेज दिया, थैंक यू सो मच। यस सर। All right. Now, illustration 13, we have to make a consolidated balance sheet. That is what the question says. Now, let's start reading the question. H Limited acquired the shares in S Limited on 1st January 20. Let me see. If I look at the balance sheet date, it is 31st March 20. 1st April 19 to 31st March 20 is our financial year, and date of acquisition is 1st January 20. It means the current year profit for the first 9 months also comes under pre-period apart from the opening balance given in the question. I repeat, apart from opening balance of reserve and surplus given in the question, even current year 9 months profit, called the first 9 months profit, also falls under pre-acquisition. Now, S Limited issued all the bills payable. The next point says, S Limited issued all the bills payable to H Limited. Something to do with consolidated balance sheet, meaning thereby उसका मेरे cost of control और minority interest से कुछ भी लेना देना नहीं है. तो even if you are getting confused, just ignore this point at the moment. Bill receivable of H Limited includes bill of S Limited only for rupees 12,000. Again, this point, sundry debtors, this point, stock, this point, this. Everything belongs to my consolidated balance sheet, and it has nothing to do with my pre-acquisition or post-acquisition profit, which affects the computation of cost of control or minority interest. So as of now, I am ignoring them. Any doubt, Bacha Party? No doubt, sir. No, sir. Okay. Now, this is my date of acquisition. I will write pre, I will write post. Now, when I look at the question, the balance sheet part, share capital is 3 lakh shares of rupees 100 each. It means how many shares are there? 3,000 shares. How many shares are there? 3,000 shares. Journal reserve opening balance is given as 51,000. Surplus opening balance is given as 24,000. And current year profits are given as 84,000. Current year profits are given as 84,000. I repeat, current year profits are given as 84,000. Now, my current year profits, 84,000 upon 12 into 9, falls under pre-acquisition profit, and in post I will show the balance, which is 84,000 into 3 by 12, which is 21,000. किसी को कोई doubt? I repeat,
सॉरी, सर आई हैव अ डाउट। हाँ बोल मेरा बेटा। जैसे इलस्ट्रेशन 10 में हमने किया था ना कि हमें लॉस हुआ था इंश्योरेंस कंपनी का, याद है? ऐड कर दिया था पहले और फिर डिवाइड करके उससे वापस 3 से माइनस कर दिया। करेक्ट। तो इसमें वैसा नहीं करेंगे क्या सर? इसमें ऐसा कौन सा प्रॉफिट है आपके पास? सर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ना। बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट तो मैंने गलत रिकॉर्ड कर रखा है, उसका तो मुझे रेक्टिफिकेशन करना है ना। वो मेरे स्टॉक की वैल्यू में इंक्लूडेड है। वो कोई मैंने करंट ईयर में प्रॉफिट ऑलरेडी इनकर थोड़ी किया है, वो तो मैंने अपने स्टॉक को 100 की जगह 120 दिखा रखा है। ओके। तो उसका तो मेरे करंट ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं होगा। वो तो बेसिकली मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉलो करना पड़ रहा है, विच सेज क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever इज लोअर। ओके सर। ऑलराइट, यहां तक और कोई डाउट मेरा बेटा? नो डाउट। नो। नाउ आप बच्चों को मेरी थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी बेटा। आई एम नॉट हैविंग कैलकुलेटर एट द मोमेंट। बिफोर आई गो फर्दर, मैंने कहा बैलेंस शीट में मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी है शेयर्स में, ये थोड़ा सा कट गया बच्चों। इफ आई रिमेम्बर करेक्टली इट वाज 2000 शेयर्स इन एस लिमिटेड, अगर आप बुक में देखेंगे। यस सर 2000। तो जो भी रिकॉर्डिंग देख रहा है बेटा, 2000 शेयर्स, जिसमें से टोटल शेयर्स थे 3000। सो हमारा होल्डिंग माइनॉरिटी का रेशियो बन गया, होल्डिंग माइनॉरिटी का रेशियो बन गया 2:1। तो हम इन सबको अब डिवाइड कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। आप कैलकुलेटर यूज कर लेना कोई भी एक बच्चा बच्चों, ताकि मेरी गलती हो तो बता देना। So far so good? Yes. Okay, now step number 1, computation of cost of control. Gross cost of investment, 2,95,000 if I remember correctly, Yes, sir. less paid up share capital. I have acquired 2,000 shares, 100 rupees is the face value, which is 2 lakh, less pre-acquisition profits. General reserve of holding represents 34 and surplus 58. अदर देन दिस, क्या ओल्ड बैलेंस शीट में कोई गुडविल या कैपिटल रिजर्व है? नहीं है। अदरवाइज दैट विल आल्सो गेट एडजस्टेड इन दिस वैल्यू। सो हमारे पास बैलेंस कितना बचा बच्चों? 3000। सो माय कॉस्ट ऑफ कंट्रोल टू बी शोन एज इंटेंजिबल एसेट अंडर द हेड गुडविल इज ₹3000। कोई डाउट बच्चा पार्टी? नो सर। Step number 2, minority interest. Paid up share capital, 1 lakh, बोले तो 1000 shares of 10 each. Pre-acquisition profits, general reserve 17,000, surplus 29,000, and post acquisition profits surplus 7,000.
So the minority interest to be shown in the new balance sheet will be 1,53,000. एक बार चेक कर लो बेटा. Yes, sir. यही है. Okay. Now, सुयश कुछ लिखना है बच्चों, मैं वेट करूं. No, sir. Okay. रिदिम. Sir लिख लिया मैंने. ना जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे, मैं वापस एक बार याद दिलाता हूँ रिदिम को, ताकि रिदिम ये गलती ना करे. रिदिम ये देखो, मैंने इस पे काटा मार दिया, याद आ रहा है बेटा? Yes, sir. Because these information has already been used. मैंने इस पे काटा मार दिया. You know why? Because this information has already been Used. अब हम बात करते हैं रिदिम सिर्फ उन पॉइंट के वर्किंग नोट बना के दिखाने की जो आप गलत कर सकते हो. लाइक एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिजर्व एंड सरप्लस टू बी शोन इन न्यू बैलेंस शीट कितना. होल्डिंग कंपनी का अपना जनरल रिजर्व कितना है सर? 90,000 प्लस शेयर इन करंट ईयर जनरल रिजर्व. कौन से वाले? 3 months. कहने का मतलब 14,000. विच इज 0. इधर देखो बेटा, इधर देखो, जल्दी मत करो, मुझे पता था आप गलत बोलोगे सुयश. बच्चों मैंने कहा करंट ईयर प्रॉफिट. अच्छा, जनरल रिजर्व. हाँ, वो तो जनरल रिजर्व तो पोस्ट में इस बार है ही नहीं हाँ, पुत्र. सॉरी, मैंने सरप्लस. अगर यहाँ पे कोई अमाउंट होता और वो होल्डिंग और माइनॉरिटी में डिवाइड होता और उसका कोई अमाउंट होता, तो वो मैं इसमें ऐड करके दिखाता. ये मैं इसलिए Yes. ऐसे लिख के बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को याद रहे. क्लियर है रिदम? Sir, अगर जनरल रिजर्व किसी ईयर का दिया होगा तो कैसे शो हुआ होगा बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में जैसे सरप्लस का उसने बताया था करंट ईयर का 1920 का. Yes, sir. ऐसे ही जनरल रिजर्व का शो कर देगा. Okay, sir. और देयर इज अनदर वे टू शो इट. वो आपको बैलेंस शीट के आउटसाइड, याद करो स्टार्टिंग के क्वेश्चन आप भूल गई हो, जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस दे देगा, बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस दे देगा, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट निकल आएगा. फिर उसको भी हम 9 months और 3 months करेंगे. क्योंकि first 9 months of the current year falls under pre-acquisition period. Yes, sir. Okay. Now number 2, यहाँ पे आ गया सरप्लस. होल्डिंग लिमिटेड का अपना ओपनिंग बैलेंस कितना है सर? 60,000 प्लस होल्डिंग का अपना करंट ईयर प्रॉफिट कितना है सर? 1,10,000 प्लस होल्डिंग कॉल्ड H लिमिटेड शेयर इन S लिमिटेड कितना है? अब बोल सकता है सुयश सर 14,000. करेक्ट मेरा बेटा? हाँ, yes. लेस, यस रिदिम, लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ स्टॉक. अब अगर आप ध्यान से देखो, उस पॉइंट को हमने छोड़ रखा था, अब पकड़ेंगे. प्रॉफिट इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, तो 1/5 ऑफ सेल्स. ब्रांच अकाउंटिंग की तरह बच्चों 25/100 is 1/4. So 1/4 of cost or 1/5 of sales is one and the same thing. Yes, sir. And we have to take with respect to sales only, क्योंकि जो जिसने भी गुड्स बेचे सामने वाला तो उसे कॉस्ट ही मानेगा ना, जबकि वो बेचने वाले का सेलिंग प्राइस रिप्रेजेंट करता है. और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है H लिमिटेड, स्टॉक ऑफ H लिमिटेड इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹15,000. तो 1/5 किसके साथ करूंगा पुत्र? 15,000. थैंक यू सुयश. इज दैट पॉइंट क्लियर? Yes. It means
the total profit to be shown under the head reserve and surplus, जब आप consolidated balance sheet में देखोगे तो कितना 2,71,000. Yes, sir. नेक्स्ट वर्किंग नोट जो मैं अपने बच्चों को सिखाना चाहता हूं, लायबिलिटी साइड का, और मोटा मोटा पूरी बैलेंस शीट ही बना रहा हूं, ट्रेड पेबल का क्रेडिटर और बिल्स पेबल. ट्रेड क्रेडिटर, ताकि सुयश ने जो गलती की थी वो ना करे. 140 प्लस 71, 140 प्लस 71, 71. और नीचे दिया हुआ था डेटर ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड 10,000 ओइंग बाय एच लिमिटेड, यानी जो एस का डेटर है वो एच का Credit. तो इस 2,11,000 में से कॉमन डेट कितना उड़ा? 10. जब हम डेटर से भी माइनस करेंगे ना. बिल्कुल करेंगे, मैं सारे वर्किंग नोट बना के बता रहा हूँ बच्चों, ताकि आप वो गड़बड़ी ना करो. मैं बस बैलेंस शीट नहीं बना रहा. बिल्स पेबल मेरा अपना कितना 0 और एस लिमिटेड का कितना 20. एस लिमिटेड ने, ये मैंने पॉइंट वैसे लास्ट क्लास में समझा दिया था, दोबारा बता रहा हूँ. एस लिमिटेड ने सारे बिल्स एक्सेप्ट किए थे टुवर्ड्स H limited. बट एच लिमिटेड कहता है मेरे पास तो उसके सिर्फ 12,000 के ही बिल बचे हुए हैं, यानी वो कितने बिल डिस्काउंट करा चुका है? 8,000. 8. उसको तो अभी बाहर में भेजो. इसका मतलब कॉमन डेट कितना बचा? 20 और 12 विच एवर इज लोअर. तो हमेशा याद रखना, जब भी कॉमन डेट माइनस करना है और आपको थोड़ा सा ट्रबल सम फील हो रहा है, तो जो भी फिगर अवेलेबल है आपके पास जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं, उसमें से हमेशा क्या सेलेक्ट कर लो? विच एवर इज Lower. मेरा लायबिलिटी साइड के मोटे मोटे सारे पॉइंट्स ओवर. सो फार सो गुड. अब आ जाते हैं बच्चों थर्ड नोट जो मुझे बनाना है पहले आपके साथ, वो बनाना है स्टॉक का. स्टॉक मेरा 70, बाजू वाले का कितने बेटा पढ़ा नहीं जा रहा मेरे से, ये थोड़ा गंदा आ रहा है इसमें. 80,000. Yes, sir. 80. तो जो लोग भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं बच्चों, एस लिमिटेड का स्टॉक 80,000. लेस कॉमन डेट कितना है? सो इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट लेस नहीं होगा? हाँ जी, अनरियलाइज प्रॉफिट लेस नहीं करेंगे क्या? सॉरी मैं कॉमन डेट वर्ड गलत लिख गया. कॉमन डेट की जगह वही लिखना चाह रहा था बच्चों. मेरा कॉमन डेट स्टॉक में थोड़ी डेटर में आएगा. लेस अनरियलाइज प्रॉफिट कितना बच्चों? 3,000. इसीलिए आपने इन्वेंट्री कितना शो किया? 1,47,000. देन कम्स ट्रेड रिसीवेबल. ट्रेड रिसीवेबल के नाम पे हमारे पास डेटर की फिगर कितनी है? 120. जल्दी मत करना बच्चों. एस लिमिटेड के कितने डेटर्स हैं बच्चों? 1,05,000. और कॉमन डेट कितना था बच्चों? 10,000. डेटर से रिलेटेड. वेरी गुड बेटा. ये दिख रहा है डेटर का उल्टा क्रेडिटर. कहाँ मर गया? ये रहा. तो आपके पास डेटर कितना आ गया बच्चा? 2,15,000. उसके बाद बिल रिसीवेबल एच लिमिटेड का कितना है? 30,000. अब देखो मैं इस पॉइंट को अलग दिखा रहा हूं, मैं एग्री नहीं करता. बचपन से तो सुयश क्या कहते हैं अपना रिदम हमने सीखा था, डेटर प्लस बी आर टुगेदर इज कॉल्ड ट्रेड रिसीवेबल. रिमेंबर? Yes, sir. But in company accounts, in holding company especially, they are showing
even in final accounts they are showing bill receivable under the head short term loans and advances. H लिमिटेड का इतना, S लिमिटेड का 0, तो 30, और इसमें कॉमन डेट कितना आया था सुयश? 20 और 12, whichever is toward to 12. कितना? 12. So far so good. Yes, sir. बाकी तो अब कर सकते हैं उत्तर, बाकी तो है ही नहीं कुछ, सिर्फ ऐड करना है और लिखना है। बीच में बस माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा जो इक्विटी शेयर होल्डर फंड के बाद लिखा जाएगा और नॉन करेंट लायबिलिटी से पहले। और एक बार कंटिंजेंट लायबिलिटी भी बता दो कि वो 17 की। बताता हूँ, हमारी टोटल कंटिंजेंट लायबिलिटी कितनी थी? 25,000। हमने कितने के बिल डिस्काउंट करा रखे हैं? 8,000। ये जो 8,000 के बिल डिस्काउंट करा रखे हैं वो अब हमारी लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर है या टुवर्ड्स आर सेल्फ ही है? क्योंकि वो तो हम खुद ही हैं। सर टुवर्ड्स बैंक नहीं होते क्योंकि डिस्काउंट। देखो सुनो सुनो सुनो, बैंक से बिल डिस्काउंट करा रखे हैं बट बैंक को वो पैसे किसने देने हैं? एस लिमिटेड ने। यस सर। और अब तो एस लिमिटेड भी मैं हूँ। ओके। अब तो एस लिमिटेड भी मैं हूँ, तो ये मेरा कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। ओके सर। इसलिए माय कंटिंजेंट लायबिलिटी गेट्स रिड्यूस्ड बाय ₹8,000। ओके सर। लॉक कर दो। सर फिर ये कंटिंजेंट लायबिलिटी टुवर्ड्स आउटसाइडर होती है ना, जो वैसे होता है? बिल्कुल, यानी बाकी जो है वो अगर आउटसाइडर पैसा नहीं देंगे तो मुझे बैंक को देना पड़ेगा। ओके सर। All about this question, guys. We'll keep on coming with one question in every class. Till then, bye bye.